Assalamu alaikum, and a very warm welcome to your first training workshop organized by the Al Fallah Bank, which is about adjusting your business plan during the crisis. I would like to request Mr. Shahid Saab to come over and give a brief about what we are going to do in this training program about on behalf of the Al Fallah Bank. So over to Shahid Saab, please. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینک الفلاح کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا. فرسٹ آف آل آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں جوائن ان کیا. ہماری کاوشیں یہی ہیں کہ بینک الفلاح کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے کلائنٹل کو، اپنے پارٹنرز کو اس طریقے سے گائیڈ کریں، اس طریقے سے مینٹور کریں کہ وہ نہ صرف یہ اسٹریسڈ آؤٹ ٹائمز میں سے گزر پائیں بلکہ گرو کریں. سو ود دس انٹینٹ ہم نے کولیبریشن آئی ایف سی کے ساتھ انیشیٹ کی ہے، جہاں پہ ہم بزنسز کو باقاعدہ گائیڈ کریں گے کہ آپ کا بزنس پلانز کے اندر اب کس قسم کی ایڈجسٹمنٹس آنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا اپنے کلائنٹل کو، اپنے ناظرین کو، اپنے پروسپیکٹیو کسٹمرز کو کہ کرنٹلی بینک الفلاح نے اسٹریس ٹائمز کے اندر بہت سارے پروگرامز آپ نے کنٹینیو کیے ہیں، جس کے اندر بہت ساری ریلیف فیکٹرز جو ہیں وہ اپنے کلائنٹل کو ہم فراہم کر رہے ہیں. اس وقت 4 اسکیمز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہے، جو کہ اسٹیٹ بینک کی ریلیف پیکج ہے، جس کے اندر آپ پرنسپل پیمنٹ ڈیفر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہاسپٹلز کی ایکسپینشنز اور امپورٹ کے لیے ایک پروڈکٹ لائن ہے، جس کے اندر آپ ہاسپٹلز کے اندر کووڈ ریلیٹڈ وارڈز بھی کریٹ کر سکتے ہیں. 100% اس کا کنسٹرکشن ورک اس سے پوری طرح فائنانس ہو سکتا ہے، اور یہ بڑے پریفرنشل ریٹس پر ہیں. اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں جو اٹریکٹیو ہے وہ سیلریز اینڈ ویجز ہے، جہاں پر آپ سٹاف کی سیلریز اور ویجز جو یہ 3-4 ماہ کا لاک ڈاؤن ہے جس سے آپ کا بزنس سٹریس میں آ سکتا ہے، تو اس کو آپ ہیج کر سکتے ہیں ود اسٹیٹ بینکس آفرنگ، اور بینک الفلاح اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا پوری طرح. پھر آپ کی ایک ٹیمپرری اکنامک ریلیف فیسلٹی ہے، جس کے اندر آپ نئی انڈسٹری پوسٹ دس پیراڈائمک ارینا آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں، وچ وڈ بی ویری بینیفیشل اکنامک بوسٹ برنگنگ اباؤٹ اے چینج ان دا انڈسٹری جو آپ وش کرتے ہیں اور جس کو آپ لے کر چلنا چاہتے ہیں. سو یہ 3-4 سکیمز کے اوپر میجر فوکس ہے، اسی وجہ سے میں نے ان کو تھوڑا ایکسپلین بھی کیا، آلدو ان کی پوری ڈیٹیلز ہماری ویب سائٹس پر ہمارے فرنٹ لائن سٹاف کے پاس موجود ہے. اب یہاں سے میں رضوان صاحب کو دوبارہ دعوت دوں گا کہ وہ آپ کے سیشن کو کنٹینیو رکھیں، اور ہمیں ذرا اسٹریسڈ آؤٹ ٹائمز کے اندر مقصد سروائیو کرنا نہیں ہے، مقصد گرو کرنا. So let's see how he guides us to grow rather than just merely surviving through the stress times. Thank you very much. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیکاز دس از فرسٹ آف اٹس کائنڈ. یہ پہلی ٹریننگ ورکشاپ آپ لوگوں کے لیے شروع ہوئی. آپ کی فیڈ بیک کے اوپر مزید ٹریننگز چلیں گی، آپ کی فیڈ بیک کے اوپر اس کے اندر مزید ٹاپکس ایڈ ہوں گے، اور اس چینل کے اوپر جب بھی ٹاپک ایڈ ہوگا تو وی ول انشاءاللہ بھی لانچنگ اٹ، تاکہ آپ کو انٹیمیٹ کر دیا جائے. سو پلیز ڈو سبسکرائب. آپ نے کامنٹ سیکشن، کچھ دوستوں نے آلریڈی کامنٹ سیکشن میں اپنی انٹروڈکشن ڈال دی ہے، سو تھینک یو ویری مچ، ان سب دوستوں کا شکریہ. اور جو دوست اپنا کچھ سوال کرنا چاہیں تو وہ ایز کامنٹ ڈالتے جائیں گے. تو میرے ساتھ شاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آن بہاف آف بینک الفلاح، وہ ان کامنٹس کے اوپر اگر میرے جواب دینے کا ہے تو یا اس سوال کے اوپر وہ میں جواب دے رہا ہوں گا، اور اگر بینک سے ریلیٹڈ ہے تو وہ شاہد صاحب آپ کو جواب دے رہے ہوں گے. سو پلیز ان کے کامنٹ کو وی ول بی شیئرنگ ٹوگیدر. میرے سامنے اسکرین بھی چل رہی ہے. چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو میں دیتا چلوں.
इंटरनेट का कनेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर इस वक्त जोर बहुत ज्यादा है इस पूरे मुल्क का। सो इस वक्त मेरी गुफ्तगू में और आपकी रिटर्न, आपके पास जो इंफॉर्मेशन चल रही है, उसके अंदर कोई 30 सेकंड का लैग है। तो वो जो कम्युनिकेशन मैं अभी कर रहा हूँ वो 30 सेकंड के बाद आप तक पहुंच रही है। सो प्लीज़ बियर विद मी, इसमें थोड़ी सी 19-20 गुंजाइश रखिएगा कि अगर कोई कमेंट आगे पीछे होता है, आपके सवाल का जवाब आगे पीछे होता है, सो इसमें माजरत इन एडवांस, क्योंकि इसमें हमारा किसी का भी कोई अमल दखल नहीं। ये अनफॉर्चुनेटली पूरा मुल्क इस टाइम पे नेट के ऊपर बैठा हुआ है। सो दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। सो बहरहाल, सो प्लीज, वेरी वार्म वेलकम अगेन। याद रखिए हम इकट्ठे क्यों हुए। ब्रूसली का तो नाम सबने सुना होगा। I would like if you just look into the Bruce Lee quote. वो कहता है कि जितना तनावर दरख्त होगा, जितना जितनी तेज हवा चलेगी, तो चांसेस ये हैं कि वो तनावर दरख्त टूट सकता है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में एक बांस खड़ा हुआ है, तो वो उतनी ही तेज हवा में वो बांस बच जाएगा और वो बांस जो है अपने आप को सरवाइव कर जाएगा। सो आई वुड लाइक कि इसकी कोटेशन से हम सब दोस्त क्या समझें। आपकी मुझे फीडबैक चाहिए, अपने नेट के ऊपर कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा कि इस मिसाल से हम क्या समझें कि हमें अब क्या करना चाहिए। प्लीज़, मैं इंतज़ार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। इधर आ जाओ, किसी तक को यहाँ पे लिखें। सो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डू यू व्हाट दिस कोटेशन मीन्स? ये मैं कर दूं? जी ज़फ़र साहब, थैंक यू वेरी मच। ज़फ़र साहब ने कहा वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल टू चेंज इन द चेंजिंग टाइम्स, और उस हालात के मुताबिक अपने आप को बदलना है। बिल्कुल दुरुस्त। यही वजह है कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए और इसी मकसद के तहत हमने अपने जो बिजनेस प्लान को रिव्यू करना है। जज़ाकल्लाह। नजम रऊफ साहब ने कहा bigger the burden, bigger the responsibility that you carry. So what we are looking forward to is कि फलदार दरख्त तो हमेशा झुका हुआ होता है। सो उस झुकाव को हमने मलूज़ खातर रखना है कि हमें उतना स्टिफ कि जो चीज़ हमें बिजनेस हमें यहाँ तक ले आया, अब जो हालात आए हैं उसके मुताबिक हमें बहुत कुछ तब्दील करना होगा। सो इस प्रोग्राम के अगर मकासद की तरफ मैं देखूं, सो ये प्रोग्राम हमें अब लेके चलना चाह रहा है उस रुख पे कि जहाँ पे हम अपना वो पाथ डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि अगर जो ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं उसके मुताबिक हमें कैसे सरवाइव करना है, हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ उस ग्रोथ की कैसे ढूंढनी है, हमें अपना इमीडिएट फंडिंग अगर हमें चाहिए तो हमें उसे कैसे सिक्योर करना है, और अगर न्यू बिजनेस प्लान को हमने लेके चलना है तो उस न्यू बिजनेस प्लान में क्या तरमीम करनी है कि हम उस नए बिजनेस प्लान के अंदर वो चेंजेस ला सकें। सो कीपिंग दैट इन व्यू, आई वुड लाइक कि मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स के हवाले से रिक्वेस्ट कर दूं दैट हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
سو اس پوائنٹ آف ویو کو ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے. ہر ایک کی اپنی سوچ کا انداز ہے, اپنا پیراڈائم ہے. سو وی ول رسپیکٹ ایچ ادر ان ٹرمز آف, اور ضرور کامنٹ کیجئے جیسے جنید صاحب نے کہا, موسٹ فلیکسیبل ایز پر دی انوائرمنٹ, the more you change the more you survive. Excellent comment. So thank you very much. اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم چلنا چاہ رہے ہیں. سو ان چھوٹے سے گراؤنڈ رولز کے ساتھ کچھ دوستوں نے تو بتا دیا کہ وہ ان کا نام اور ان کی بزنس کون سا ہے, بٹ آئی وڈ ڈیفینیٹلی لائک کہ اگر آپ تھوڑا سا مجھے صرف یہ بتاتے چلیں کہ باقی احباب جو جوائن کر چکے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. سو آئی جسٹ ویٹ 2 to 3 minutes. آئی وڈ لائک کہ آپ کامنٹ باکس میں اپنی ڈیٹیلز ڈال دیجیے. تھینک یو ویری مچ. سر وہ اسکرین لے آتے ہیں, مجھے دیکھ نہیں رہا کہ وہاں کیا دکھ رہا ہے. نہیں اسکرین آ رہی ہے نا کہ یوٹیوب پہ کیسا دکھ رہا ہے. ہاں یہ اس کو بھلے چھوٹا کر دیں. اس کو چھوٹا کر دیں. نہیں صرف اس ایریے کو نیچے سے پکڑ کے نیچے سے. نہیں نہیں ہو رہا. چلے جی ہاں جی ہاں. جی ہاں نہیں مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت اسکرین پہ چل کیا رہا ہے, میری تصویر چل رہی ہے یا سلائڈ چل رہی ہے. جی جی تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ آلموسٹ تمام دوستوں نے اپنے نام اور اپنی دا پروڈکٹ اینڈ دا سروسز کا ذکر کر دیا ہے. سو ود دیٹ آئی وڈ ڈیفینیٹلی لائک کہ ہم دوبارہ سے اپنے پروگرام کو آگے کی طرف لے کے چلیں. اب اپنے پرسپیکٹو کو کیسے چینج کرنا ہے, ہم نے اس زاویے کو, یہ جو ہم جس بینگ فلیکسیبل کی بات کر رہے ہیں, اب اس فلیکسیبلٹی کے اندر کیا چیز شامل ہوگی. سو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں, اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. یہ گلاس پانی سے, آپ کے سامنے تصویر چل رہی ہے, اس میں بتائیے گا کہ یہ کیا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں.
वेरी नाइस। तुफैल साहब, जजाकल्ला। नजम रऊफ साहब, हाफ फिल्ड। जफर साहब, हाफ ग्लास फुल ऑफ वाटर, एक्सेलेंट। यकीनन हम इसी पर्सपेक्टिव को लेके चलना चाह रहे हैं कि हमें आधा ग्लास खाली ना दिखे, हमें आधा ग्लास भरा हुआ दिखे। सो अब ये वो एक पॉजिटिव एंगल है जिसे आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी कह सकते हैं। ये वो मुस्बत रुझान है जिसके बाद हम कुछ उस पॉजिटिविटी की तरफ देख सकेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त यही होगी कि अगर आप इसको बिजनेस के हवाले से देखें तो हाफ ग्लास एम्प्टी, अगर मैं ये कहूं कि आधा ग्लास खाली पड़ा है, तो मैं तो यही सोचूंगा कि बिजनेस तो जनाब खत्म हो गया, सारे मामलात तो ठप हो गए। लेकिन अगर मैं हाफ ग्लास फुल का इसका जाविया लूं तो हम यही कहेंगे कि ये वो आपके पास खामोशी का वक्त आ गया जो अल्लाह ताला की तरफ से आया कि अब मैं बैठ के अपने बिजनेस प्लान को रिव्यू करूं और उसको इस अंदाज में देखूं कि हमने इस बिजनेस को अब कैसे लेके चलना है, हमने आने वाले वक्त के हिसाब से अपने आप को कैसे बदलना है, या किन चीजों के ऊपर हमें काम करना है। अगर मैं किसी इवेंट मैनेजमेंट के साथ मुतल्लिका हूँ और मैं ये कहूँ कि मेरे इवेंट्स ख़त्म हो गए, मेरी तो वो तमाम तर चीज़ें जो मैं एक्टिविटीज़ बाहर जाके करता था वो ख़त्म हो गई, तो फिर आई हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं हाफ ग्लास फुल वाला व्यू लूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बेहतर नेगोशिएशन का मौका मिलेगा। अब मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं सोच समझ के आने वाले वक्त के मुताबिक जो चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को अब अपने प्लान के अंदर लेके चलूँ। अगर मैं हाफ ग्लास एम्प्टी वाला व्यू लेके चलूँ तो फिर आवर कस्टमर्स आर नॉट सो इंटरेस्टेड इन ऑफरिंग एनी मोर। ज़ाहिरी बात है, हालात के मुताबिक ना तो मैं उस उतने औकात दे पा रहा हूँ, ना मैं उस तरीके से फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ। सो वो कस्टमर्स वो एग्जिस्टिंग ऑफर को कैसे एक्सेप्ट करेगा। मुझे ये देखना है कि मैं अब उसके नए इंटरेस्ट एरियाज के अंदर कैसे लेके चल रहा हूँ। अब मुझे ये बताइए, बैंक अल्फला ने अगर ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया आप लोगों के लिए, तो ये किस रुझान को इजहार करता है? ये बड़े आराम से उसी रुझान का इजहार कर रहा है कि हमें जो पहले आपस में मिल बैठ के एक मीटिंग का मौका मिलना था जो नहीं मिल पाया, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने कहा कि यार चलो रिमोट मीटिंग ही कर लें, आपस में कुछ तो राब्ता, कुछ तो ताल्लुक कायम रहे। और यही वो नया अंदाज है जिसके अंदर चेंज के बारे में हम बातें करने लगे हैं कि ये वो हमें चेंज अब लेके चलना होगा। सो हर वो चीज जो हम करते आए 2019 के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि अब 2020 के अंदर वही कुछ 100% अप्लाई हो सके। सो व्हाट गॉट यू हियर, जिस चीज की मदद से हम यहां पहुंचे, जरूरी नहीं कि वही चीज हमें अब आगे भी लेके चलेगी। सो हमें अब आगे चलने के लिए अपने आप को, अपने बिजनेस प्लान को एडजस्ट करना होगा। उसी एडजस्टमेंट का नाम जो है वो ये चेंज है। इसको आप चेंज कह लें, इसको आप एडजस्टमेंट कह लें, इसको आप आने वाले वक्त के मुताबिक तब्दीली कह लें कि ये जो नया दौर शुरू हुआ जिसके अंदर अब आपने देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे चेंजेस लिए, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली लिए। अब हम भी एक ग्लोबल प्लेयर तो मौजूद हैं, हमें भी इंटरेक्ट तो करना है ग्लोब के साथ, तो उन्हीं चीज़ों को अब हम साथ लेके चलेंगे। विद दैट, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इस बिजनेस प्लान के बारे में या इस बिजनेस प्लानिंग के बारे में आप कितना जानते हैं, या इस बिजनेस प्लान को आप कितने करीब से एड्रेस कर चुके हैं, या इसकी क्या डेफिनेशन होगी, वो जरा मुझे बताइएगा प्लीज। So good. Uh, we need to collaborate. We need to join in. Uh,
फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। अगर मैं बिजनेस प्लान को डिफाइन करना चाहूं तो व्हाट वुड बी माय डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर इनपुट। अभी तक किसी दोस्त ने इनपुट नहीं डाली, तो मैं आपको थोड़ा सा एक क्यू देता हूं। आई विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो बिजनेस प्लान, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने उसी प्लान की तरफ जाइए जो जिंदगी में पहली दफा आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था। सो उस बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त आपने चंद एक सवाल अपने आप से किए थे, मसलन व्हाट एम आई गोइंग टू सेल, मैं क्या बेचूंगा, मैं कहाँ बेचूंगा, मैं किससे इंटरेक्ट करूंगा, मेरे कस्टमर्स कौन होंगे, मैं क्या चार्ज करूं, मेरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं उन लोगों तक कैसे राब्ते में आऊंगा, मैं उन लोगों को कैसे अट्रैक्ट करूंगा, मैं अपने बिजनेस के बारे में लोगों को क्या बताऊंगा। अब ये वो सारे सवालात थे जो आपके जहन में आए, और यही वो सवालात थे जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जो लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, उन सब को इन्हीं सवालों के जवाब भी चाहिए होते हैं। सो अगर मैं इसी सवाल को, इन्हीं नुकात को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, एक डेफिनेशन बनाना चाहूँ, तो मेरी किताब में एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट, जो वो डॉक्यूमेंट जिसको मैं बिजनेस प्लान कह रहा हूँ, मेरा वो रोड मैप, वो डायरेक्शन जो देता है कि मैंने क्या मिशन, क्या विजन अचीव करना है, मैं किस लिए मार्केट में आया हूँ, उन सारी चीज़ों को जब मैं डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और ये ऑपरेशनल डिटेल्स उसके अंदर डाल देता हूँ कि कितने पैसों से मैं अपना ये सर्कल चलाऊंगा, तो यही वो रिटन डॉक्यूमेंट को बिजनेस प्लान कहते हैं। अब हो सकता है हमारे पास एक रिटन डाउन बिजनेस प्लान मौजूद हो, और ये भी ऐन मुमकिन है कि मेरे इस वक्त दिल में सिर्फ बिजनेस प्लान मौजूद हो। मैं उस सीने के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको जब रिटन डॉक्यूमेंट की शक्ल में ले आऊंगा, तो मैं अपने लेंडर्स से, अपने बैंक से कम्युनिकेट कर पाऊंगा और दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचा पाऊंगा। सो अब थोड़ा सा हमें स्टडी ये करना है कि बिजनेस प्लान को अगर मुझे लिखना है, मुझे अगर उसको तैयार करना है, तो उसके क्या एलिमेंट्स होंगे। सो मैं आपको अब लेके चलता हूँ कि किसी भी बिजनेस प्लान को अगर मुझे शुरुआत करनी है, तो सबसे पहला सवाल है, मैं क्यों एग्जिस्टेंस में आया, मेरा मिशन, मेरा विजन क्या है। जब मैं उसको, अपने विजन को क्लैरिफाई कर लेता हूं, तो फिर मुझे अपने ऑपरेशनल प्लान्स की तरफ देखना है, मुझे उन डिटेल्स की तरफ देखना है कि मैं अपने इस इंजन को, ये जो मैंने छोटा सा एक इंजन बनाया जिसको मैं बिजनेस का नाम दे रहा हूं, मैंने कैसे उसको, सर्कल को चलाना है, कि मैंने इनपुट डाली पैसे की शक्ल में, रिसोर्स की शक्ल में, और उस इनपुट से कुछ आउटपुट निकला। सो ये मेरा ऑपरेशनल प्लान मुझे बताता है कि मैंने इन सारी चीज़ों को किस अंदाज में लेके चलना है, किस फंक्शन ने, किस डिपार्टमेंट ने क्या करना है। उस ऑपरेशनल प्लान के अंदर मुझे एक मार्केटिंग प्लान चाहिए कि मेरे इस सर्कल को स्पीड देने के लिए, इसको तेज करने के लिए मुझे एक मार्केटिंग प्लान चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट की कैसे मार्केटिंग करूंगा। उस मार्केटिंग प्लान को फिर मुझे कम्युनिकेट करना है, अपनी आवाम तक पहुंचना है, अपने कस्टमर्स तक पहुंचना है। सो मैं उसकी एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी तैयार करूंगा, जिसको आप कहते हो कि मेरा कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करूंगा, कोई मैं नेट यूज़ करूंगा, कोई एडवर्टाइजमेंट यूज़ करूँ, हो सकता है मीडिया को यूज़ करूँ। सो मेरा एक टेक्नोलॉजी प्लान मौजूद होगा। एंड उसके साथ साथ मैं फिर अपना ह्यूमन रिसोर्स, कितने लोग डाले मैंने, कितने फंक्शंस के अंदर मुझे ये लोग चाहिए जो ये मेरे प्लान को, ऑपरेशंस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। सो मेरा फिर एक ह्यूमन रिसोर्स प्लान बीच में डलेगा। इस सारे सर्कल को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, क्या मार्जिन होगा, कितनी ओवरहेड्स होंगे, क्या अखराजात होंगे, वो सारा कुछ कहलाता है माय फाइनेंशियल प्लान। और फाइनली माय कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, मैं इस कारोबार को 360 डिग्रीज चलाए रखूं कि पैसा इनपुट हो, पैसा
किसी शक्ल में कन्वर्ट हो, वो प्रोडक्ट और सर्विस मेरा मार्केट में जाए, मार्केट से पैसा लेके वापस बिजनेस के अंदर आए और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो, इसको कंटिन्यूटी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कहते हैं। सो ये वो बिजनेस प्लान है जो कि रिटन डॉक्यूमेंट के इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके हिस्से हैं, और इन्हीं प्लान्स को जब भी आप कभी बैंक जाते हो या किसी लेंडर के पास जाते हो, तो वो यही कुछ जानना चाहता है कि क्या जिस बिजनेस में मैं पैसा लगाने लगा हूँ वो सूदमंद होगा, वो मुझे भी फायदा देगा, इनको तो फायदा देगा ही देगा, क्या मुझे भी फायदा देगा। सो अभी के लिए अगर मैं शुरू करना चाहूं, तो हमने जो कहा था अपनी बिजनेस प्लान को एडजस्ट करने के लिए, उसमें से एक एलिमेंट को मैं लेके चल रहा हूं, एंड दैट एलिमेंट इज कॉल्ड द मार्केटिंग प्लान। अब ये बड़ी मजे की बात है कि जो अब मैं टूल्स आपसे शेयर करूंगा, ये वो तमाम टूल्स हैं जो कि आप इन्हीं बिजनेस प्लान्स को, इन्हीं अपने बिजनेस प्लान के तमाम तर एलिमेंट्स को रिव्यू करेंगे वन बाय वन, वही टूल्स अप्लाई करेंगे और उन्हीं टूल्स को अब आप साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले आप ढूंढना क्या चाहते हैं इस मार्केटिंग प्लान को रिव्यू करने में, जिससे आप एडजस्ट कर लेंगे। जाहिरी बात है, आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं, ऐसा ही है ना? यस, नो? जी बताइएगा कि हम इस बिजनेस प्लान से ढूंढना क्या चाह रहे हैं। ओके, सो हम इस बिजनेस प्लान से बेसिकली ढूंढना चाह रहे हैं कि हमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, और उसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। मसलन आप लोगों ने स्वॉट एनालिसिस का टूल तो सुना ही होगा। जिन दोस्तों ने नहीं सुना, वो काइंडली बताएं कि क्या स्वॉट एनालिसिस के बारे में वो जानते हैं या नहीं। जी गुलाम सरवर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप स्वॉट एनालिसिस के बारे में जानते हैं, दैट्स नाइस। और कोई दोस्त जो स्वॉट एनालिसिस के बारे में नहीं जानते, वो काइंडली बताएं। जी जफर साहब, थैंक यू वेरी मच, यू आर अवेयर ऑफ इट, गुड। चलें, यहीं से शुरुआत करते हैं। वो अहबाब जो इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा अपग्रेड, और जो दोस्त अहबाब नहीं जानते उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इस स्वॉट एनालिसिस को एज ए टूल अगर हम रिव्यू करें, तो इस टूल की एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू वीकनेसेस, ओ अपॉर्चुनिटीज, और टी थ्रेट्स। ये याद रखिएगा। ये स्वॉट एनालिसिस जिन दोस्तों ने इसको इस्तेमाल किया, ये सिर्फ एक बिजनेस टूल नहीं है। अगर आप इस स्वॉट एनालिसिस टूल को स्टडी करें, तो हम शायद दिन में सैकड़ों दफा स्वॉट करते होंगे। अगर बच्चे को हमने स्कूल में डालना है तो हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे होंगे, हमें फ्रिज खरीदना है तो हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे होंगे, हमें कोई भी फैसला करना है, चाहे छोटे से छोटा फैसला हो, आपका जहन, आपका प्रोसेसर एक
इमीडिएटली स्वॉट एनालिसिस मोड में चला जाता है कि ये जो मैं फैसला करने चला हूं इसका क्या फायदा होगा, अगर ये मैंने फैसला किया तो इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस फैसले में मेरे लिए आने वाले वक्त में क्या भलाई होगी, और इस फैसले से कौन कौन लोग हैं जो नाखुश होंगे। सो ये एक छोटा सा स्वॉट एनालिसिस आप हर लम्हे कर रहे होते हैं। सो ये कोई नया टूल नहीं है, ये याद रखिएगा। ये हम अल्लाह ताला ने हमें वो कैपेबिलिटी दे रखी है कि हम वो सेकंडों के अंदर, वो जो काम इंसान घंटों में कर रहा होता है लिख के, वो सेकंडों के अंदर आपका दिमाग कर लेता है। सो इस स्वॉट एनालिसिस टूल को डॉक्यूमेंट किस अंदाज से करना है, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। हम स्वॉट तो हर वक्त यूज कर रहे हैं, ये टूल नया नहीं हमारे लिए। सो आप सब दोस्त इसको माशाल्लाह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और आई एम श्योर अब आपको एक बेहतरीन आइडिया हो गया होगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बड़ा आम फहम टूल है। हाँ, इसकी एक करने का तरीका, करने का सलीका, अगर आप ये देखें, आपके दाएं और बाएं इस स्लाइड के दो चीजें लिखी हुई हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब अगर मैं इस इंटरनल और एक्सटर्नल को थोड़ा सा आपको तफसील लेके चलूं, तो जो इंटरनल चीजें हैं वो मेरी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, और जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं जो मार्केट में पाई जाती हैं। स्ट्रेंथ वीकनेस मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन की हैं, लेकिन मुझे ये कैसे पता चला ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसकी रिलेटिव रेलेवेंस जो है वो मार्केट के हवाले से है। मैं किसी चीज में स्ट्रांग हूं तो वो कंपटीशन के हवाले से हूं जो बाहर है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है। अगर मैं कहीं कमजोर हूं तो वो मेरी इंटरनल कमजोरी जरूर है, लेकिन वो रिलेटिव है, वो मार्केट में कोई और ऐसा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उन एरियाज में मुझसे तगड़ी है। सो इसलिए मैं उसको वीकनेस कह रहा हूं क्योंकि कोई और है मार्केट में। सो ये ऐसी चीज है कि हम इसको बिल्कुल बाइफरकेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये रिलेटिव है। मेरी मार्केट में जितनी भी स्ट्रेंथ मैं अपने आप को कह रहा हूं स्ट्रांग, मेरी इंटरनल है, वो मार्केट की रेलेवेंस के हिसाब से। सो एक तो कुलिया, एक कानून ये ज़हन में रखिएगा कि दीज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर रिलेटिव टू द मार्केट। हो सकता है मैं पाकिस्तान के अंदर अपनी जहां पे स्ट्रेंथ जिस चीज को कह रहा हूं वही चीज मेरी वीकनेस हो, मे बी इन द मिडल ईस्ट और मे बी इन द यूएस। सो अब अगर मैं रिलेटिव टर्म्स में देखूं तो एक तो कुलिया इसका क्लियर हो गया कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस रिलेटिव टू मार्केट एवेल्युएट असेस करनी है, और इसी तरीके से थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज भी रिलेटिव टर्म्स में एवेल्युएट हो रही होंगी। दूसरा कानून, जिस चीज का भी स्वॉट किया जाए वो स्वॉट उस दायरे कार से बाहर नहीं होना चाहिए। मसलन अगर मैं अपनी जात का स्वॉट एनालिसिस करूंगा तो मैं इसमें कोई ऐसी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट नहीं डालूंगा जो इस जात से, इस एरिया से बाहर होगी। अगर मैं लाहौर सिटी का स्वॉट एनालिसिस करना चाहूं तो मैं इस लाहौर सिटी से बाहर की बात नहीं करूंगा। अगर मैं पाकिस्तान का स्वॉट करना चाहूं तो मैं पाकिस्तान से बाहर की बात नहीं करूंगा। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अब स्वॉट करना चाहूं तो मैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन हदूद के अंदर जहां मैं ऑपरेट कर रहा हूं, जो मेरी यूनिवर्स है, जो मेरी डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस के अंदर रहते हुए स्वॉट एनालिसिस करूंगा, वरना मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाऊंगा। ये दूसरा कुलिया इसका कानून। तीसरा कानून जो बड़ा आम कानून है, मैं इस कागज के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं लिखूंगा जिस पे मैं अमल दरामद कर ही नहीं सकता, जो किसी और के करने का है। जो काम हुकूमत पाकिस्तान ने करना है वो मैं इस स्वॉट एनालिसिस में नहीं डालूंगा। मैं इस स्वॉट में सिर्फ वो बातें लिखूंगा जो मेरे करने की हैं। सो आई एम श्योर ये तीन कुलिये कानून इस स्वॉट एनालिसिस को करने के आपके सामने आ गए होंगे। अब इन कुलिये का कवानीन को अगर मैं आगे लेके चलूं और इस स्वॉट एनालिसिस को बढ़ाना चाहूं तो किन जावियों पे देखूं। ये इसका आखिरी कानून है कि मैंने कौन से जावियों पे स्वॉट एनालिसिस करना है। अब मसलन अगर आप बैंक के हवाले से देखें तो बैंक का जाविया 5 C's है। 5 C's से आप दोस्त अहबाब वाकिफ होंगे।
एक सी बताता है कि मैं कोलेटरल दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, मेरी करंट कैश फ्लो सिचुएशन क्या, मेरा करेक्टर इन टर्म्स ऑफ द पेमेंट ऑफ द फीस क्या रहा है, मेरी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रही है। सो इसी अंदाज से अगर मैं सेल्स वालों को लूँ, तो जो मार्केटिंग वाले हैं, जो सेल्स वाले हैं, वो अपने आप को किस अंदाज में वैल्यूएट करते हैं। वो 7 C's एक और हैं उनके फॉर्मूला, जिन जावियों पे वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं। मसलन वो कहते हैं मेरा कस्टमर कौन है, मेरे चैनल्स कहाँ हैं जहाँ पे जिन पे मैंने रह के बेचना है, मेरा मेरा जो कंट्री है, जो ऑपरेशन एरिया है वो कौन सा है, मेरे जो की रिटेल आउटलेट्स हैं, जो चैनल्स हैं वो कौन से हैं, मेरी जो इस एरिया के अंदर कैटेगरीज हैं जिनमें मैं डील कर रहा हूँ वो कौन सी हैं। तो ये वो जाविये हैं। इसी तरीके से अगर मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैक्रो फैक्टर्स को स्टडी करना है, तो आई एम श्योर आप लोगों ने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का ये लफ्ज सुना होगा, PESTEL, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल फैक्टर्स। ये वो तमाम तर फैक्टर्स हैं। जब कोई भी कंपनी किसी और मुल्क में जाके बिजनेस करना चाहती है, तो मैक्रो फैक्टर्स उस मुल्क के स्टडी करने के लिए पेस्टल के जाविये को इस्तेमाल करती है। अब देखना है मार्केटिंग वाले क्या करते हैं। मार्केटिंग वाले अपना स्वॉट एनालिसिस किन जावियों पे करते हैं। सो वो जाविये आप अहबाब काफ़ी लोग वाकिफ होंगे। आप सब ने 4 P's सुना होगा। फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग की जो किताब है उसके अंदर 4 P's का इजहार है। उन 4 P's के ऊपर वो जिक्र करता है। और अब नई जो जिद्दतें आ रही हैं उसके अंदर 4 P's की जगह 6 P's का जिक्र है। वो हैं प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, पैकेजिंग और पीपल, पर्सन्स। सो मार्केटिंग के ये वो जाविये हैं जिनके ऊपर मैं सवाल और जवाब तैयार करूंगा, जिनके ऊपर मैं आप को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जब अपना प्लान तैयार करना है तो उसके अंदर स्वॉट एनालिसिस को इन्हीं जावियों के ऊपर अपने परखिएगा मार्केटिंग प्लान को, तो आपको खुद ब खुद जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। सो ये वो जावियों का इजहार इसलिए ज़रूरी है ताकि आप हर एंगल को अच्छे तरीके से परख लें, और उस परख के अंदर हम देख के चलें कि हमें किस अंदाज में सवाल अपने आप को स्ट्रेंथ में करने हैं, किस अंदाज में हमने अपने सवालात को लेके चलना है प्लेसमेंट के अंदर, प्राइसिंग के अंदर, प्रमोशन, पैकेजिंग, पर्सन। ये सारे के सारे मैंने स्ट्रेंथ के अंदर देखने हैं। फिर मैंने ये तमाम तर वीकनेसेस के अंदर भी देखने हैं जाविये। फिर मैंने तमाम तर थ्रेट्स के अंदर ये जाविये देखने हैं, और फिर ये तमाम जाविये मैंने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी देखने हैं। हाँ, एक कमाल की बात कि मुझे अपने सवालों को किस अंदाज में लेके चलना है वो मुझे ये बताएगी कि मैं अपनी ऑप्शंस को किस जगह पे लिखूं, कौन सी चीज़ है जो मुझे इंटरनली ताकत दे रही है, और कौन सी चीज़ है जो एक्सटर्नली मेरे लिए तकलीफ दे बन रही है, मैं उसको उस खाने में डालता चला जाऊंगा। सो अगर आप इस स्लाइड को अब गौर से ज़रा देखिएगा, थोड़ी सी गौरतलब स्लाइड है, इसको स्टडी करने में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये तमाम 6 P's हर जाविये में हम लेके चल रहे हैं। इस तमाम तर चीज़ के अंदर आई एम श्योर मैं थोड़ा सा डाइजेशन टाइम दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को इसके ऊपर कोई इस वक्त कोई सवाल सामने आ रहा हो तो ज़रूर पूछिएगा कि इस के हवाले से हमें कोई कोई क्वेरी, कोई सवाल आपका आता हो तो प्लीज़ ज़रूर इस वक्त शेयर कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद फिर हम इसको एक एक एरिए को क्या किस अंदाज में हमें अपने आप को सवाल करना है और वो इसके अंदर लिखना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
اوکے، اگر ابھی کسی دوست کا کوئی سوال اس موضوع کے اوپر نہیں، تو میں اس کا اگلا سٹیپ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک بڑا آسان سا نقطہ ہے اس میں سے اپرچونٹیز کو ڈھونڈنا، اور وہ ہے ان سوالات کی مدد سے میں اپنی آفر کو ان کرائسس کے مطابق جو پروڈکٹ کی آفر ہے کیسے بدل سکتا ہوں، اس کے اندر کیا تبدیلی لا سکتا ہوں، اگر میں نے اس میں تبدیلی کو لے کے آنی ہے تو اس کے مطابق مجھے کس انداز میں اس کو مٹیریل کو پروکیور کرنا پڑے گا۔ میں اس اپنے پروڈکٹ کو اگر غور سے دیکھوں تو مجھے اس پروڈکٹ کے حوالے سے کون کون سی ایسی چیز ہے جو نئی آرگنائز کرنی پڑے گی، کوئی را مٹیریل آرگنائز کرنا پڑنا ہے، کوئی اس میں سے کچھ چیز میں نکال دوں۔ میں اس پروڈکٹ کے حوالے سے اگر غور سے دیکھوں تو میں اس کے اندر نیا کیا ایڈ کروں، یا کون سی ایسی چیز ہے جو نکال لوں کہ یہ پروڈکٹ کی اس حالات کے مطابق شکل بن جائے۔ آج کل کے حوالے سے کون سی چیز زیادہ ریلیونٹ ہے، میں اس کے اوپر فوکس کر لوں۔ سو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو میں پروڈکٹ کی آفرنگ کے اندر تبدیلی کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں، کہ جیسے روز پیٹل کا اگر آپ اس وقت کا اشتہار دیکھیں تو انہوں نے فوراً پروڈکٹ کے حوالے سے اپنے آپ کو ری پوزیشن کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہاتھ دھونے کے بعد ٹیشو سے صاف کرنے ہیں۔ سو یہ وہ امیڈیٹ چینج تھی جو انہوں نے اپنے حالات کے مطابق اپنی پروڈکٹ کی آفرنگ کو چینج کی۔ اگر آپ بینک نہیں جا سکتے، لاک ڈاؤن سچویشن ہے، تو کیا بینک آپ تک پھر بھی پہنچ سکتا ہے؟ تو کیا آن لائن بزنس کو زیادہ فروغ دیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، اب پیسنجرز نہیں پک کرنے کی اجازت، اوبر ہے، کریم ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو کیا میں اپنی گاڑی کو ایز اے لوڈر، ایز اے ڈسٹریبیوشن وہیکل، کیا اس انداز میں استعمال کر سکتا ہوں؟ سو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو مجھے اپنے حوالے سے اسٹڈی کرنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے۔ میں پہلے بچوں کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا اپنی، کیا مجھے اپنے پروڈکٹ کو اب ایز اے ٹریول وہیکل چینج کر کے کسی اور انداز میں لے کے چلنا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے میں اپنی پروڈکٹ کی آفرنگ کو اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہوں، اپنے حساب سے اس پروڈکٹ کی آفرنگ کو بدل لوں۔ یہ رہی وہ چند سوالوں کے زاویے جن کو میں اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے لے کے چلوں گا۔ اب آ جائیں پلیس کے حوالے سے، کہاں پہ کیا کسٹمر میری بزنس میں آ سکتا ہے؟ کیا میں اپنے کسٹمر کو گھر تک پہنچ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے کسٹمر کی وینیو کو اپنا بزنس لوکیشن بنا لوں؟ کیا میں اپنی بزنس کو آن لائن لے جا سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے کسٹمر کو اور امپلائیز کو اپنے پلیس آف بزنس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جیسے ریٹیلرز نے، جنرل سٹورز نے کیا کیا؟ اگر آپ اپنی مارکیٹ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ وہ پہلے تو کہتے ہیں جی ڈیٹل سے یہ ذرا پاؤں اٹھائیے گا میں اسپرے کر دوں، یا انہوں نے وہ اسپرے کے گیٹس لگا دیے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کائنڈلی یہ ٹیمپریچر میں نوٹ کر لوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کائنڈلی آپ یہ ہاتھ کے اوپر سینیٹائزر لگا لیجئے۔ سو ریٹیلرز نے اپنی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیا تاکہ میرے کسٹمرز پھر بھی میرے پاس آئیں۔ کچھ دوست احباب تھے جو آن لائن چلے گئے، انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو آن لائن دینا شروع کر دیا۔ کچھ احباب تھے، اگر آپ نے غور کیا ہو، ایک دکان کے اندر میں کھڑا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا باہر سے ہارن کی آواز آئی تو دکاندار فٹافٹ کچھ چیزیں لے کے باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو میں نے کہا آپ گاڑی پہ گئے اور گاڑی پہ جا کے چیزیں دے آئے؟ تو اس نے کہا کہ جی اس کسٹمر نے مجھے فون کر دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، تو انڈے ڈب روٹی اور فلانی چیز تیار رکھنا، میں تمہیں گاڑی پہ باہر ہارن دوں گا، تم باہر ہی لے کے آ جانا۔ سو کچھ دکانداروں نے اس کو ویلکم کیا، انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا یار یہ دیکھو باہر سے کھڑا ہو کے ہارن دے رہا اور کہہ رہا ہے دکان کی چیزیں میری گاڑی کے اندر لے آؤ۔ سو دس از ہاؤ یو آسک یور کوسچنز اباؤٹ کہ میں نے اپنے پروڈکٹ کو گاہک تک کیسے پہنچانا ہے۔ میں اس کو سوٹ کے تمام زاویوں کے اندر وہ تمام چیزیں ڈالنا شروع کر دوں گا جو کہ متعلقہ ہوں گی میری پہنچ کے حوالے سے، پلیسمنٹ کے حوالے سے، پرائسنگ کے حوالے سے۔ ایسا تو نہیں کہ چیز شارٹ ہو جائے گی، شارٹ ہوگی تو کیا میرا گاہک واپس ہونا شروع ہو جائے گا؟ کیا گاہک کہیں اور چلا جائے گا؟
मेरी प्राइसिंग के हवाले से कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को लगेगा कि जी क्योंकि पीछे से अब माल महंगा आ रहा है तो मैंने प्राइस बढ़ाई तो लोग कहेंगे ये पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। क्या लोग ये फिर भी ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं कि भाई दिए रखना, पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं तो ले लो कि हमें पता है कि पीछे से महंगे होंगे। सो मुझे अपनी कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं फ्री दे सकता हूँ? क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन में से एक अपने आप को स्टिल प्रॉफिटेबल रखते हुए एक सैनिटाइजर, एक मास्क, कोई ऐसी लो वैल्यू चीज़ जो कि उस प्रोडक्ट की खरीदारी के साथ उस ग्राहक को फ़ायदा दे जाए, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं कोई जॉइंट प्रमोशन कर सकता हूँ? क्या ऐसे प्रोडक्ट के साथ मेरी जॉइंट प्रमोशन हो जाए जो आजकल बहुत बिक रहा है? मैं ये भी ट्राई आउट कर सकता हूँ। फिर प्रमोशन से रिलेटेड मुझे क्या सवाल पूछने हैं? क्या मेरा प्रोडक्ट मार्केट में जाना जा रहा है? क्या लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूँ? क्या मेरी कम्युनिकेशन, मेरी एडवर्टाइजमेंट इस वक्त लोगों को पता चल रही है? ये वो तमाम तर पूछने के अंदाज हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं वो स्वॉट एनालिसिस को क्वालिटी स्वॉट एनालिसिस बनाने में कि मैं अपने आप को आसान अंदाज में अवेलेबल कर पाऊँ, आसान अंदाज में मैं अपनी मार्केटिंग कर पाऊँ। अगर मुझे इस हवाले से देखना है कि क्या एक कॉफ़ी शॉप अगर मेरी एक कॉफ़ी शॉप है, तो क्या मैं हर आने वाले को एक सैनिटाइज़र की छोटी बॉटल जो कि वो वॉलेट में कैरी कर सके, दे सकता हूँ? क्या मैं एक ऐसा सैनिटाइज़र टिश्यू उसको दे सकता हूँ गिफ्ट के तौर पे कि वो कप भी ले और वो साथ में एक सैनिटाइज़र टिश्यू भी मेरे से ले ले? क्या मैं जॉइंट प्रमोशन किसी के साथ मिलके कर सकता हूँ? और फिर फाइनली ये तो प्रमोशन से रिलेटेड रहा, एक मेरा जो पी है दैट इज़ माय पैकेजिंग और पैकेजिंग के बाद फिर पीपल। मेरी पैकेजिंग जो है वो किस हवाले से ज़्यादा सेफ अगलों को महसूस होगी? मैं क्या लिफाफे के अंदर एक और लिफाफा डाल दूं? क्या मैं जैसे आपने देखा होगा ऐसे सैनिटाइजर्स भी मौजूद हैं कि आपने उसके अंदर से वॉक थ्रू गेट के अंदर से गुजरे, तो ये वो ऐसी पैकेजिंग उन्होंने सैनिटाइजर की कर दी कि मुझे कहीं हाथ नहीं लगाना, मुझे उस गेट में से सिर्फ गुजरना है और मेरी पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी। ये उन्होंने अपनी सैनिटाइजर की पैकेजिंग को चेंज किया। जो भी कोई अगर एसकेयू मुझे छोटे एसकेयू में जाना है कि इस करंट सिचुएशन के मुताबिक जहाँ पे आपने देखा कि इस वक्त लोगों को एक परेशानी का आलम है, तो मुझे किस एसकेयू को ज़्यादा फोकस करना है? एसकेयू से मुराद है स्टॉक कीपिंग यूनिट। मुझे अपना 100 ml की बॉटल को ज़्यादा पुश करना है या मुझे अपनी 10 ml की बॉटल को या 10 ml के साशे को ज़्यादा पुश करना है? ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो मेरी पैकेजिंग से रिलेटेड फैसले होंगे जिनका मैं स्वॉट एनालिसिस करूँगा और ये मैं हर ज़ाविये को अपने स्ट्रेंथ के हवाले से, वीकनेस के हवाले से, थ्रेट्स के हवाले से और फिर अपॉर्चुनिटीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता एक्सप्लोर करता चला जाऊँगा। मेरे लोग कैसे होने चाहिए? मेरे लोगों को, मेरे एम्प्लॉइज़ को कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करना है कि लोग परेशान ना हों, लोग कंफर्टेबल रहें, लोग ये जान रखें कि हमें अपने आप को किस अंदाज़ में पेश करना है। वो ग्लव्स पहने हुए हैं, वो मास्क पहने हुए हैं कि नहीं? कस्टमर मेरे लोगों को कैसे देखना चाहता है? ये वो पर्सन से रिलेटेड मेरा स्वॉट एनालिसिस था, जिसको मैं इन ज़ावियों के ऊपर परख रहा हूँगा। अब दोस्तों, ये जो आपने 6 पीज़ का ज़ाविया देखा, इस सारे के सारे ज़ाविये के अंदर मैंने जब स्वॉट एनालिसिस किया, मैंने इन तमाम तर ज़ावियों के ऊपर अपनी क्वेश्चंस, अपने अपॉर्चुनिटीज़, अपनी थ्रेट्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स लिखनी शुरू कर दी, तो मैं इन ज़ावियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट की तैयारी के मराहिल में शुरू हो चुका हूँ। एक आखिरी कानून स्वॉट एनालिसिस करने का मैं आपको बताता चलूँ और वो कानून बड़ा कीमती है। उस कानून को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यही वो
मैजिक पार्ट है जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार मिलना शुरू हो जाती है। सो इस स्लाइड को अब गौर से देखिएगा। इस स्लाइड के अंदर किस अंदाज से आप सॉर्ट करेंगे, वो अंदाज आपको बताएगा कि आपने इसके लिए क्या रुख इख्तियार करना है। ये वही सॉर्ट की स्लाइड है जो आपने पहले देखी, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार कैसे होगी। जैसे हमने पहले कहा था कि मेरी स्ट्रेंथ रिलेटिव टू द मार्केट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब मैं अगर अपनी स्ट्रेंथ्स को रीइंफोर्स करूं, मैं उन स्ट्रेंथ्स को मजीद भरपूर इस्तेमाल में लेके आऊं, तो वो मेरी तमाम तर स्ट्रेंथ जो है, वो मेरी रीइंफोर्समेंट जो है, वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अगर मेरी कोई चीज़ें मार्केट में मैंने देखा कि मेरी कमज़ोरियाँ थी, वीकनेसेस थी, उन वीकनेसेस को जब मैं कन्वर्ट करूँगा, रिवर्स करूँगा, वीकनेसेस ख़त्म करने वाले अवामिल करूँगा, तो वो जितने अवामिल हैं जो मेरी वीकनेस को ख़त्म करेंगे, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी। वो तमाम तर एक्सटर्नल थ्रेट्स जिनका मुझे खौफ है, ख़तरा है, अगर मैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश करूं, उनको मैं रोकने की कोशिश करूं, तो वो तमाम तर कोशिशें जो रोकने वाली होंगी, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी। सो इस तरीके से अगर मैंने एक एक नुक्ता स्ट्रेंथ का लिखा था, एक एक नुक्ता 6 पीज में वीकनेसेस का लिखा था, मैंने एक एक नुक्ता 6 पीज के जावियों पे थ्रेट्स का लिखा था, तो इस वक्त मेरे पास 18 अपॉर्चुनिटीज नई पैदा हो जाएंगी इन स्ट्रेंथ्स को रीइंफोर्स करने में, वीकनेसेस को रिवर्स करने में और थ्रेट्स को ब्लॉक करने में। और यही वो अब लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मेरे पास पैदा हो गई जिनकी बेसिस पे मैं अपने बिजनेस प्लान को आगे लेके चलूंगा। सो गुड, सो फार सो गुड। अब यही वो बिजनेस प्लान है जिसमें वो आपका लेंडर, आपका बोरोअर आपकी इस चीज को देखना चाह रहा है कि आपने अपनी आने वाले वक्त के हवाले से क्या तैयारी कर रखी है, जिसके लिए आप फंड्स मांग रहे हैं, जिसके लिए आपको मजीद फंड्स दरकार हैं, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, या कुछ आपको 2019 से लेके 2020 और 2020 से आगे क्या कुछ चाहिए। अगर आप इस फॉर्मेट को देखें तो ये वो बिजनेस प्लान का एक फॉर्मेट की शक्ल है जिसमें आप कह रहे हो कि 2019 यस्टरडे में क्या था और आने वाले वक्त में मैं क्या तब्दीली चाह रहा हूं, मैं क्या तब्दीली करना चाहता हूं, जिसके मुताबिक मुझे अपने इस स्वॉट एनालिसिस को डॉक्यूमेंट की बातें जो मैंने स्वॉट एनालिसिस में लिखी थी, ये वो कागज है जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बता रहा है। इसी शेप को अगर मैं आगे लेके चलूं तो ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स यस्टरडे एंड टुमारो के हवाले से बता रहा है कि कोविड-19 ने मेरे बिजनेस में क्या तब्दीलियां मेरे मुतवक्के हैं और उस चेंज के मुताबिक मुझे क्या नई स्ट्रैटेजीज को अपनाना है और मैं उन स्ट्रैटेजीज को कैसे लेके चलूंगा। सो बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट के अंदर इस फॉर्मेट को भी यूज किया जा सकता है। गो के स्वॉट एनालिसिस का एज इट इज टूल भी अगर आप लगाएंगे तो बैंक अल्फला ये अच्छी तरह समझता है कि आपने बड़े आसान अंदाज में अपने बिजनेस का तज्जिया किया है और अब आप प्लान्ड हैं कि मुझे इस बिजनेस प्लान को किस हिसाब से आगे मुकम्मल करना है। सो इस बिजनेस प्लान को अगर मैं देखूं तो ये वो रिव्यू है कि जो हमने पहले किया जिसमें हमने सिर्फ अपने मार्केटिंग प्लान को देखा। अब मुझे वही अंदाज स्वॉट एनालिसिस का पॉइंट नंबर 1 विच इज माय मिशन एंड माय विजन, उसके ऊपर अप्लाई करना है। उसके जाविये अलग होंगे। इसी तरह ऑपरेशंस प्लान है, इसी तरह मेरा कम्युनिकेशन प्लान है, इसी तरह मेरा ह्यूमन रिसोर्स प्लान है, फाइनेंशियल प्लान है और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है। इन तमाम प्लान के ऊपर अब मैं स्वॉट एनालिसिस लगाऊंगा और उस स्वॉट एनालिसिस को फिर मैं आगे उन जावियों के ऊपर परखूंगा जो उस एरिया से, उस एनवायरनमेंट से रेलेवेंट हैं और अपना एक जामे बिजनेस प्लान लेके अपने बिजनेस लेंडर्स के पास, अपने बैंक के पास जाऊंगा ताकि मैं उसको उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकूं, उसकी मार्केटिंग कर सकूं। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अब वो मेरा लेंडर देखना क्या चाहता है, वो आई एम श्योर आप जानते हो कि वो देखना ये चाहता है कि आप क्या मांग रहे हो और क्यों मांग रहे हो।
आपकी जो सोच है वो किस ज़ाविये पे है, और वो अपने 5 सीज़ के ज़ाविये से अपना स्वॉट एनालिसिस भी तो करेगा कि मैं इस कस्टमर को अगर पैसे दे रहा हूँ, तो इसमें मेरा स्वॉट क्या कहता है, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकलती है। सो वो 5 सीज़ क्या हैं? मेरा कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ कि मैं पहले जब लोन लिया था तो मैं कितने वक्त पे अदा करता रहा। मेरा कोलेटरल कि क्या मैंने ये बिजनेस जब से स्टार्ट किया या जब मैं बैंक से फाइनेंसिंग करवाई तो मेरे पास क्या इनफ कोलेटरल सपोर्ट है। आई एम श्योर जो प्रॉपर्टी या जो एसेट मैं शो कर रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या उससे ज़्यादा है जिस अमाउंट की मैं डिमांड कर रहा हूँ। कैपेसिटी टू पे, क्या मेरे पास मेरी बिजनेस के अंदर मेरे बिजनेस मॉडल में या इस मेरे टर्नओवर के अंदर इतनी कैपेसिटी है, या मैंने कहीं और तो लोन्स नहीं ले रखे। सो क्या मेरे बिजनेस में इतनी कुव्वत है कि वो जो अमाउंट है वो पे ऑफ कर सकूंगा। क्या मेरे पास इतने अपनी इक्विटी मौजूद है, मेरे पास अपना कैपिटल मौजूद है। क्या मेरी डेट इक्विटी रेशियो तो नहीं खराब हो रही, और क्या मेरे कंडीशंस जो हैं वो करंट हालात के मुताबिक जो कोविड 19 में लॉकडाउन चल रहा है, वो जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक भी हैं या नहीं है। सो दीज आर द 5 सीज जो बैंक अपने स्वॉट एनालिसिस में यूज करेगा। सो हमें इस स्वॉट एनालिसिस की भी तैयारी करके रखनी है, राइट। सो अब चलते हैं, आप यू आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन। हम अपने सेशन का अगर एहतताम करें, सो इस एहतताम के अंदर मैं आपको सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा कि हम बिल्कुल आखिर तक पहुंच चुके। इसको कंक्लूड करते हैं कि इसके बाद क्या है। ये तो हमने स्वॉट एनालिसिस जो करना था वो कर लिया। आने वाले वक्त में आप दोस्तों ने आगे क्या करना है और इस बिजनेस प्लान को हमने कैसे फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जाना है, वो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं। और वो जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो हमारे हेल्प आउट करेंगे हमें कि हमने अब तक जो किया उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो हमने ज़ाहिर है अपनी इंट्रोडक्शन करवाई, हमने अपना जहन बदला कि यार मुझे एक चेंज लेके आनी है, मुझे अपने बिजनेस प्लान को शिफ्ट करना है। मैं एक आधा ग्लास फुल के हवाले से सोच रहा हूँ, मैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के हवाले से सोच रहा हूँ, और अब मुझे अपने बिजनेस प्लान को अपने लेंडर्स के हवाले से भी तैयार करना है। और फाइनली हम इस स्टेज पे आए कि मुझे इसके बाद क्या करना है। सो इसकी अगर मैं समरी आपको बताऊं तो अब मुझे इसको समराइज करने के बाद मुझे अपना स्वॉट एनालिसिस मुकम्मल करना है। ये सिर्फ मार्केटिंग प्लान का था। सो मेरी रिक्वेस्ट तो आप सबसे दोस्तों से ये होगी कि इस बिजनेस प्लान के हर एलिमेंट का स्वॉट करने के बाद अपने जावियों के ऊपर आप तज्जिया कीजिएगा। सो और उसके मुताबिक अपना बिजनेस प्लान मॉडिफाई कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। अपने लेंडर्स से बात करें अगर ज़रूरत है तो, अगर ज़रूरत नहीं और आप समझते हैं कि मैं सफिशिएंट हूँ, मेरा प्रोडक्ट सफिशिएंट है, मेरी कैपेबिलिटी सफिशिएंट है, फाइनेंसेस सफिशिएंट है, सो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। अगर मुझे अपने शेयर होल्डर से, अपने पार्टनर से, अपनी टीम से गुफ्तगू करनी है तो उसकी मुझे गुफ्तगू तैयार करनी है कि अब हम ये चेंज जो करने चले क्यों करने चले हैं, और अपने न्यू प्लान को अब हम एग्जीक्यूट अमली जामा पहनाएं। आपको मैंने बताया था कि हम लोगों का ये वन ऑफ द प्रोग्राम्स है, और भी बहुत सारे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं। मसलन सर्वाइविंग टुडे टू थ्राइव टुमारो, कल हमने कैसे अपनी ग्रोथ दोबारा से लेनी है, दिस इज वन प्रोग्राम। असेसिंग फाइनेंस ड्यूरिंग क्राइसिस, कि अगर क्राइसिस हैं तो मुझे अपनी फाइनेंसेस को देखना है कि क्या मैं अपनी वर्किंग कैपिटल को लुक आफ्टर कर सकूंगा या मुझे एडिशनल फंड्स चाहिए। मुझे अपने स्टेक होल्डर्स और अपने बैंक्स को कैसे कम्युनिकेट करना है, और एडजस्टिंग योर बिजनेस प्लान ड्यूरिंग क्राइसिस, तो अभी आपने वर्कशॉप अटेंड की ही। सो ये वो चंद एक प्रोग्राम है, और इनको हतमी ना समझिएगा। आपकी फीडबैक बैंक को जो आप देंगे उसके अंदर आपकी मर्जी का टॉपिक भी बैंक तैयार कर सकता है, और उसका आपके साथ वेबिनार तैयार होगा। इसी तरीके से आपको इंटीमेशन भी दे दी जाएगी, और इसी इंटीमेशन के साथ आप आगे भी चल सकेंगे। सो इस टाइम पे थोड़ा सा जो हमारे पास वक्त बचा है, इसके मुताबिक अगर आपका इस टाइम कोई सवाल आपके जहन में हो, सो प्लीज़ डू आस्क। शाहिद साहब मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ,
we can both address to your questions together. आप अपने questions comment box में लिखिएगा और उन comment boxes के हवाले से we can then address to your questions. जी मैंने कमेंट डाल दिया, एनी क्वेश्चन प्लीज, ताकि फिर हम उन सवाल जवाब के बाद फिर अगर मैं वाइंड अप करना पड़ता है तो देन वी वाइंड इट अप. जी दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना ईमेल के ज़रिए बैंक को वो सवाल भेज सकते हैं, अपनी आने वाली वक्त के मुताबिक ज़रूरत को भेज सकते हैं. आपको किस टॉपिक पे और ट्रेनिंग वर्कशॉप चाहिए आप वो इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं. आपको कोई सवाल जो अगर हम यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे कोई 30 एक सेकंड का डिले चलता है, मेरे कहने के और आपके सुनने में 30 सेकंड की डिले है, सो वो उस डिले की वजह से अगर कोई कंफ्यूजन आपको महसूस हुई हो तो उसकी माजरत है. लेकिन आप अपने सवालों को बाद में भी एड्रेस करके मेरे तक सवाल पहुंच जाएंगे और हम उसको अकॉर्डिंगली एड्रेस भी करना चाहेंगे. मैं इस वक्त अगर कोई सवाल नहीं, सो मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा. सो आप सब दोस्तों का शुक्रिया. इट हैज़ बिन वंडरफुल टॉकिंग टू यू और इंशाल्लाह वील स्टे इन टच. मैं शाहिद साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके आपको खुदा हाफिज़ कर दें. सो ओवर टू शाहिद साहब. सो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़. Assalamu alaikum ji. Thank you very much for your patience. और once again on behalf of Bank Alfala मैं आप लोगों को खुश आमदेद भी कहूँगा और कंटिन्यूड सपोर्ट भी चाहूँगा ताकि हम बिजनेसेस के लिए इस सिलसिले को आगे लेकर चलें और एक हमारे नॉन फाइनेंशियल एडवाइजरी का जो एस्पेक्ट है जो कि ओनली बैंक इन पाकिस्तान है जिसके पास अप एंड रनिंग फॉर द पास्ट 3 to 4 years है, तो उसको हम यूटिलाइज कर पाएँ और अपने क्लाइंट्स को हम गाइड करें कि once again I'll repeat it कि Bank Alfala would like their clientele to grow rather than to just merely survive through this tough environment. ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में we will be again inviting a different set of individuals to proceed on with a different aspect towards management. Thank you very much.